ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ آج کی بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور جہانگیر خان ترین کو اپیل کا حق مل گیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کے دستخط کے بعد سپریم کورٹ ریویو ایکٹ بل اب قانون بن گیا ہے۔ نئے قانون کا اطلاق ماضی سے ہوگا۔ اٹارنی جنرل نے نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ میں پیش کیا، کہا نئے قانون میں سپریم کورٹ کے نظر ثانی اختیار کو وسیع کیا گیا ہے۔ تو آج کی عدالتی کارروائی سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جہاں اٹارنی جنرل نے نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کیا اور یوں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق رہنما تحریک انصاف جہانگیر خان ترین کو اپیل کا حق مل گیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے اس بل پر دستخط کر دیے۔ سپریم کورٹ ریویو ایکٹ بل صدر مملکت کے دستخط کے بعد اب قانون بن گیا ہے۔ قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ نااہلی تاحیات ہوگی۔ پاناما کیس میں آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی گئی۔ چند کیسز میں سیاست کو اپنی ڈگر پر چلانے کی کوشش کی گئی۔ معاون خصوصی عرفان قادر کی نیوز کانفرنس، کہا کہ یوسف رضا گیلانی کی نااہلی بھی صریحاً غیر قانونی تھی۔ جو آئین کے دائرے میں چل رہے ہیں وہی احترام کے قابل ہیں۔ سپریم کورٹ کا کام نہیں کہ الیکشن کی تاریخ دے۔ تمام ادارے آئین کے تابع ہیں۔ کوئی بھی فرد واحد پاکستان کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ کو فوقیت دینی ہے، نہ ہی آئین کا ہے کہ کوئی بھی فرد واحد جو ہے وہ آپ کو کنٹرول کرنا شروع کر دے۔ انفارچونیٹلی یہاں پہ جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس ہو رہی ہے۔ کس طرح سے بینچز بنائے جاتے ہیں اور کس طرح سے چیف جسٹسز جو ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم سارے ملک کی سیاست کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے رہے یا سیاست کو وہ اپنی ڈگر پہ چلانے کی کوشش کرتے رہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کا معاملہ جب ان کو کنٹیمپٹ لگائی گئی اور پوری حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، گو کہ آئین کے آرٹیکل 62 63 میں فورمز موجود ہیں ڈسکوالیفائی کرنے کے، لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ سم ہاؤ اس وقت کی سپریم کورٹ نے اپنے اوپر لے لیا اور انہوں نے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیج دیا، یہ کہہ کے کہ انہوں نے عدالت کی توہین کی ہے۔ کہ وزیر اعظم پاکستان کا ہرگز یہ منصب نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ سپریم کورٹ کے پیغامات جو ہے باہر کی دنیا کو پہنچائے۔ تاحیات نااہلی کی تلوار ہٹنے کی امید جاگی تو سینئر سیاستدان جہانگیر ترین سیاست کے میدان میں ایک بار پھر متحرک ہو گئے۔ لاہور میں جہانگیر ترین نے سابق سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات علیم خان کی رہائش گاہ پر ہوئی اور دونوں رہنماؤں کے درمیان ملکی مجموعی صورتحال اور موجودہ سیاسی کردار کے حوالے سے اہم مشاورت کی گئی۔ اس ملاقات میں وزیراعظم کے معاون خصوصی اون چودھری بھی شریک تھے۔ شعیب صدیقی اور سعید اکبر نوانی بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ ملاقات کے مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ جہانگیر ترین کو اب اپیل کا حق مل گیا ہے اور سیاست میں وہ ایک بار پھر متحرک ہوئے ہیں۔ شعیب صدیقی، اون چودھری اور دیگر جو قریبی رفقا ہیں علیم خان اور جہانگیر ترین کے، وہ آج کی اس ملاقات میں موجود تھے۔ یہ ملاقات علیم خان کی رہائش گاہ پر ہوئی ہے۔ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ آج سے کچھ روز بعد جہانگیر خان ترین ایک نئی سیاسی جماعت کا اعلان کریں گے جس کے لیے وہ مشاورت کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ان کی آج پہلی باقاعدہ باضابطہ ملاقات ہوئی ہے علیم خان سے۔ فیصل آباد سے پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے چودھری علی اختر اور شکیل شاہد نے ساتھیوں سمیت پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا۔ چودھری علی اختر نے کہا کہ پی ٹی آئی سے تعلق اچھا رہا مگر آرمی مقدم ہے۔ شاہد شکیل بولے کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ اب نہیں چل سکتے۔ فیصل آباد سے تحریک انصاف کے سابق ایم پی اے چودھری علی اختر اور شکیل شاہد نے ساتھیوں سمیت پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا۔ اپنی نیوز کانفرنس میں چودھری علی اختر نے کہا کہ پی ٹی آئی سے تعلق تو اچھا رہا لیکن آرمی مقدم ہے۔ اور پی ٹی آئی کے ایک اور سینئر کھلاڑی کپتان سے باغی، تحریک انصاف کی سینئر نائب صدر وومن ونگ پنجاب کنیز فاطمہ نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے پارٹی عہدے چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ بحیثیت پاکستانی 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت کرتے ہیں، وہ اپنی فیملی کو وقت دینا چاہتی ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے ایک اور سینئر کھلاڑی کپتان سے باغی ہو گئی۔ ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، بس میں کہہ رہی ہوں کہ میں نہیں کرنا چاہ رہی، آگے میں بریک چاہ رہی ہوں، پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ میرے خیال میں جو لوگ ملوث تھے ان میں جو حملے ہوئے ہیں ان کے خلاف آلریڈی کارروائی ہو رہی ہے اور میرے خیال میں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کے جو ملک کی املاک کے اوپر اس طرح سے حملہ ہے وہ کسی بھی میرے خیال میں پولیٹیکل پارٹی کو زیب نہیں دیتا۔
9 मई को जो कुछ हुआ उसे रेड लाइन करार दिया गया और उस रेड लाइन को क्रॉस करने वाले को दहशतगर्द कहा जाए या ना कहा जाए, ये एक बहस है। एहसन इकबाल कहते हैं कि 9 मई को जो कुछ हुआ उसके करने वाले को दहशतगर्द ही कहेंगे। GHQ पर हमला करने वालों को सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? किसी के खिलाफ ठोस सबूत हैं तो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी उसे माफ़ी नहीं मिलेगी। PTI वाले 2 दिन की जेल बर्दाश्त नहीं कर सके, हमने गोली भी खाई मगर सियासत छोड़ी और ना ही पार्टी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का मजीद कहना था कि IMF से बातचीत जारी है, जल्द मामलात तय पा जाएंगे। डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट वाले जो लोग हैं वो जिस तरीके से अपने तस्वे बहा रहे हैं या मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं और वो ये कहना चाहते हैं कि उनको भी अफसोस है, उनको भी तकलीफ है, तो मैं ये बात हरगिज मानने को तैयार नहीं हूँ। सेनेटर सीमी एसडी का कहना है 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करती हूँ, मुतालबा करती हूँ वाक़े की तफ्तीश करके करार वाक़े सजा दी जाए। 9 मई के वाक़यात की पुरज़ोर मजम्मत करती हूँ, इसकी तफ्तीश की जाए और इसको कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के रूल में रहते हुए इसको जो लोग इस पे वाक़े में इन्वॉल्व हैं उनको करार वाक़ई सजा दी जाए। सेनेटर ज़रका तैमूर, फलकनाज चित्राली और ज़िशान खानज़ादा ने भी 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की। कहा इमलाक के नुकसानात पर मजम्मत करते हैं, ख़वातीन के तशद्दुद के हवाले से एक दरख्वास्त जल्द दायर करेंगे। और इमरान खान अब बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। वफाकी काबीना ने चेयरमैन PTI का नाम ECL में डाल दिया। 190 मिलियन पाउंड केस में नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म का नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश की। वफाकी काबीना ने सर्कुलर समरी के जरिए मंजूरी दी। हुकूमत का बुशरा बीबी का नाम भी ECL में शामिल करने का फैसला। उधर अलकादे ट्रस्ट करप्शन केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर 31 मई को समाअत करेगी। मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल स्पेशल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। खुफिया मुलाकातों से मामलात नहीं चल सकते। ये अदालत अदलिया की आज़ादी के कानून को लागू करती है। तहकीकात करानी है तो बाकायदा तरीक़ाकार से आएँ। खुद पर मुश्तमिल कमीशन तश्कील नहीं दूंगा, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत शुरू होने के कुछ देर बाद ही मुलतवी भी कर दी गई। पंजाब इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट के नजरसानी के कवानीन मंजूर हो चुके हैं। नए एक्ट के तहत नजरसानी का दायरा-ए-कार अब अपील जैसा होगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि इसीलिए इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले आर्टिकल 187 के तहत नजरसानी के दायरा इख्तियार को बढ़ाने का रास्ता दे रहे हैं। क्यूरेटिव रिव्यू के मामले को भी देख रहे हैं। क्यूरेटिव रिव्यू जज के जानिबदार और समाअत का मौका न मिलने पर होता है। आपने ऑडियो लीक्स कमीशन केस में हमारा हुक्मनामा पढ़ा होगा। जहन में रखें कि अदालत ने कमीशन कलअदम करार नहीं दिया। हमने मेमोगेट, एबटाबाद कमीशन और शहजाद सलीम कत्ल के कमीशन का नोटिफिकेशन दिखाया। तमाम जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस की मर्जी से कमीशन तश्कील दिए जाते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी चीज पर तहकीकात करानी है तो बाकायदा तरीक़ाकार से आए। मैं खुद पर मुश्तमिल कमीशन तश्कील नहीं दूंगा, लेकिन किसी और जज से तहकीकात कराई जा सकती है। ये सियासी पारा मईशत और अमन और अमान को बेहतर नहीं करेगा। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। और वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बदल की तहकीकात मुकम्मल करने पर मुशावरत शुरू कर दी। एक नया जुडिशल कमीशन बनाने की तजवीज़ वफाकी काबीना के सामने रखी जाएगी, जिसका सरबराह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का साबिक जज होगा। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सदीक साजिद। हुकूमत ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात जारी रखने का फैसला कर लिया है। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद ऑडियो लीक्स की तहकीकात का अमल मुकम्मल करने पर मुशावरत शुरू कर दी है। काबीना अरकान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के साबिक जज की सरबराही में नया कमीशन बनाने की तजवीज़ आ गई।
ज़राए के मुताबिक इस कमीशन में खुफिया दारों के सीनियर अफसरान और मुतल्लिका वजारतों के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। नया जुडिशल कमीशन बनाने की तजवीज़ वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और मुआविन खुसूसी इरफान कादिर की तरफ से दी गई। हुकूमत ने ऑडियो लीक से मुतालिक नए कमीशन का मामला वफाकी काबीना में ले जाने का फैसला कर लिया। इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट्स पर गौर के बाद नया कमीशन बनाने की हतमी मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। वफाकी वजारत दाखिला और वजारत कानून इस हवाले से अपनी अपनी सिफारिशात पेश करेंगी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार सहाफ़ियों के सवालात पर गुस्से में आ गए। सहाफ़ी ने सवाल किया, इसहाक डार साहब, क्या IMF से मुआहिदा ना होना आपकी नाकामी है? जिस पर उन्होंने जवाब दिया, क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया है? हमने हर इंटरनेशनल पेमेंट की है। इसहाक डार ने नए बजट और IMF के हवाले से सवालों का जवाब देने से ही गुरेज किया। डॉक्टर साहब, ये आपकी नाकामी है कि IMF के साथ अभी तक आपके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पाए। डॉक्टर साहब, आपको पहली मरतबा सख्त मईशत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि आप मईशत को संभाल नहीं पा रहे। जजमेंट दे दो तो फिर हम बाजी देख लेंगे। सर, जजमेंट नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना। नहीं तो क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया? पाकिस्तान ने बॉन्ड नहीं पे किया इंटरनेशनल। अब कम ऑन व्हाट इंटरनेशनल, हर इंटरनेशनल पेमेंट की है। बात करेंगे डॉलर की, तो डॉलर की ऊंची उड़ान बरकरार है। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 311 रुपये पर बंद हुआ। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ इंडेक्स में तेज़ी रही। 100 इंडेक्स 41,000 की हद अबूर कर गया। मार्केट 375 पॉइंट्स के इजाफे से 41,340 पर बंद हुई। नौ मई को पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान GHQ पर हमला हुआ। वाक़े में 12 मुलजिमों को मिलिट्री कोर्ट के हवाले करने के लिए तलब कर लिया गया है। मुलजिम थाना आरे बाजार और थाना सिविल लाइंस में दर्ज मुकदमात में नामजद हैं। अब बाकायदा तौर पर इन्हें मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले करने के लिए तलब कर लिया गया है। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात से मुताल्लिक़ 12 मुलजिमान को फ़ौजी हुकाम के हवाले करने का फैसला हुआ है। रावलपिंडी के थाना आरे बाजार और सिविल लाइंस में दर्ज मुकदमात में ये लोग नामजद हैं। चौधरी सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे, उनसे मज़ीद तफसील जानते हैं। चौधरी सज्जाद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसील है इससे मुताल्लिक़? जी बिल्कुल, रावलपिंडी से अगर हम आपको बताएं तो 9 मई को पुरतशद्दुद एहतजाज, GHQ हमला और गेट तोड़ में जो मामलात में जो लोग इस वक्त मुलव्वस थे, वाक़या में 12 मुलजमान को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले करने के लिए तलब कर दिया गया। अदालत का मुलजमान की हिरासत में मिलिट्री अहकाम को देने का हुक्म किया है। मुलजमान थाना आरे बाजार, सिविल लाइन में इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं। जेल अहकाम को मुलजमान को मिलिट्री कमांडेंट ऑफिसर के हवाले करने की हदायत वो कर दी गई है। मुलजमान मोहम्मद अदरीस, जिनके नाम हम आपको बताएं, मोहम्मद फारूक, राजा मोहम्मद एहसन, मोहम्मद अली को मिलिट्री कोर्ट कमांडर ऑफिसर के हवाले करने का हुक्म दिया गया है। मुलजम मोहम्मद अली हसन, लाल, शाहबाज, शेरियार, जुल्फकार, फरहाद खान को भी मिलिट्री कोर्ट कमांडर के अहकाम के हवाले हुक्म वो कर दिया गया। मुलजमान के खिलाफ तरतीब थाना आरा बाजार और सिविल लाइन में भी मुकदमा दर्ज हैं। मुलजमान को जुर्म ऑफिसर सेक्रेटरिएट एक्ट के तहत दफा 379 के जुमरे में आता है। अदालती हुक्म के मुताबिक इनको मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले करने का हुक्म जो वो जारी कर दिया गया। अब ये देखना है कि उनको हवाले कब दिया जाता है। ये कुछ कहना यकीनी तौर पर सवाल है जिसका जवाब तलाश करने की कोशिश की जाएगी। बहुत शुक्रिया चौधरी सज्जाद। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ये कहते हैं कि ख़वातीन से बदसलूकी से मुताल्लिक़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जिना हाउस हमले में मुलव्वस अफराद को माफ़ नहीं किया जाएगा। अभी तक इमरान खान की नज़रबंदी का कोई फैसला नहीं हुआ है। निगरान वज़ीर आला की लाहौर समनाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। PTI की गिरफ्तार ख़वातीन से बदसलूकी से मुताल्लिक अफवाहों की सख्ती से तरदीद कर दी। सैयद मोहसिन नकवी ने कहा, ख़वातीन से बदसलूकी से मुताल्लिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। माओ बहनों की इज्जत करें और प्रोपेगेंडे से गुरेज करें। सैयद मोहसिन नकवी ने एक बार फिर वाज़े किया कि खदीजा शाह की रिहाई की खबरों में कोई सदाकत नहीं। जिना हाउस पर हमले में जो भी मुलव्वस हुआ उसे मुआफ नहीं किया जाएगा, चाहे वो कितने ही असर व रसूख वाला हो। उनके खिलाफ हतमी कार्रवाई होगी और सजा भी मिलेगी। उनका मजीद कहना था कि 9 मई जैसा वाकया पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। जिना हाउस में जो भी मुलव्वस है, चाहे वो कितना असर रसूख वाला क्यों ना हो, वो छूटेगा नहीं। उसका पूरा ट्रायल होगा, चाहे वो कोई भी है। निगरान वज़ीर आला का मजीद कहना था कि इमरान खान की नजरबंदी का कोई फैसला नहीं हुआ। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्जाम में कोई हकीकत नहीं।
SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर अनूश मसूद ने भी गिरफ्तार खवातीन से बदसलूकी की तरदीद कर दी। PNN से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गिरफ्तार खवातीन के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। जेल में खवातीन कैदियों की बैरकों से पर ड्यूटी भी लेडीज अहलकार तैनात होती हैं। जेलों में एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार है, कानून सबके लिए बराबर है। देखिए, अभी हम लोग वहीं से होके आ रहे हैं, प्रिजन के अंदर से। इन सारी खवातीन से हमारी मुलाकात हुई है, एक एक करके हमने हर एक से बात की है और इसमें जितने भी नाम हैं, इसमें 9 जो है इस वक्त ID परेड पे बंद हैं और एक डॉक्टर यास्मीन राशिद है। हमने जिनसे सबसे मुलाकात की है उन सबसे ये तक पूछा है कि उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी हमें बताएं। खतीजा शाह के बारे में खासकर बताइएगा, जो इंटरनेशनल मीडिया भी इसको प्रवोक कर रहा है, तो आपकी उनसे क्या बात हुई? क्या उनका ये कहना है कि कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ? देखिए, खतीजा शाह से भी मेरी मुलाकात हुई है, हम लोगों ने उससे बात की है और देखिए मेडिकल प्रॉब्लम्स जिन जिन की हैं उनको तमाम मेडिसिन प्रोवाइड की गई हैं। अगर किसी को सांस का इशू है, किसी को स्किन प्रॉब्लम है, यहाँ तक भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं और यहाँ पे सिर्फ फीमेल्स की एंट्री होती है। तो ऐसा जो भी प्रोपेगेंडा है, जो भी ऐसी बात फैलाई जा रही है, दिस इज टोटली आउट ऑफ क्वेश्चन और यहाँ पे मेल की एंट्री है ही नहीं है, इज ओनली फॉर द फीमेल्स। अभी ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करें कि नैब तरमीमी बिल 2023 भी बाकायदा कानून बन गया है। 15 मई को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में तरमीमी बिल पास हुआ था। सदर ने बिल पर दूसरी बार भी दस्तखत से इनकार किया था और 10 दिन बाद बिल कानून बनकर अब नाफिजुल अमल है। तो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 भी अब कानून की हैसियत इख्तियार किया गया है। 15 मई को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इस तरमीमी बिल को पास किया गया था और सदर ने इस बिल पर दूसरी बार भी दस्तखत करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ज़ाब्ते के तहत 10 दिन तक अगर दस्तखत नहीं किए जाते तो फिर ये बिल कानून की हैसियत इख्तियार कर जाता है। आज इस बिल के साथ यही हुआ। नैब तरमीमी बिल 2023 है जो कि अब बाकायदा कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है। नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसील जान लेते हैं। सिद्दीक, आगाह कीजिएगा, सदर ने दस्तखत न किए, कानून नाफिजुल अमल है? जी बिल्कुल, और उसकी वजह यह है कि 15 मई को जो है वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में नैब तरमीमी बिल जो है वो दोबारा मंजूर किया गया था। सदर ने इसको वापस भिजवाया था तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर किया गया। सदर ने दोबारा दस्तखत से इनकार किया तो 10 दिन के अंदर अंदर कानून साजी का जो मरहला था वो आज खुद मुकम्मल हो गया और आज ये बिल जो है वो एक्ट बनकर नाफिजुल अमल हो गया है। इसमें जो मेन चीज है वो ये है कि अब जितनी भी पेंडिंग इंक्वायरीज होंगी वो चेयरमैन नैब को इख्तियार हासिल हो गया है कि वो अगर चाहें कि इनके शवाहिद पूरे नहीं है तो इनको वो बंद कर सकेंगे और साथ ही साथ इन इंक्वायरीज को मुख्तलिफ जो इदारे हैं, एजेंसीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनको भी भिजवा सकेंगे। और साथ ही साथ ऐसा जो केस जिसको समझेंगे कि इसको क्लोज करना एहतसाब अदालत की इजाजत से जरूरी है तो एहतसाब अदालत से रुजू करके वो केस वहाँ पे अपनी सिफारिश के साथ भिजवा सकेंगे। और उसके साथ साथ ये भी है कि अगर चेयरमैन नहीं होगा तो डिप्टी चेयरमैन कायम काम चेयरमैन होगा और अगर डिप्टी चेयरमैन भी नहीं होगा तो फिर वफाकी हुकूमत नैब के किसी भी सीनियर अफसर को कायम काम चेयरमैन जो है वो मुकर्रर कर सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद। और राना सनाउल्लाह के खिलाफ इस हवाले से आपको बताएंगे, मगर अभी बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद उमर की जुमेरात तक हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने लाहौर में दर्ज इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात में असद उमर की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील सिफाई ने कहा कि असद उमर ने इस्लामाबाद में भी मुकदमात में पेश होना है, हफ्ते तक की ज़मानत दी जाए। अदालत ने 25,000 के मचलकों के एवज असद उमर की जुमेरात तक हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। राना सनाउल्लाह के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी को धमकाने का मुकदमा, गुजरांवाला की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का। राना सनाउल्लाह पर 28 जून को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। वज़ीर दाखिला की 1 रोज़ के लिए अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई। तो राना सनाउल्लाह के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी को धमकाने का मुकदमा, गुजरांवाला की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का। राना सनाउल्लाह पर 28 जून को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। मेयर कराची के इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी को मजीद 6 नशिस्तें मिल गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने रोके गए 6 हलकों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके बाद पीपल्स पार्टी की नशिस्तों की तादाद 104 हो गई है। मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट।
शहर कायद में बल्दियाती इंतखाबात, पीपल्स पार्टी ने नशिस्तों की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। इलेक्शन कमीशन ने रोके गए 6 हलकों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के मजीद 6 उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया गया। पीपल्स पार्टी नशिस्तों की सेंचुरी मुकम्मल करते हुए बल्दियाती इंतखाबात में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली जमात बन गई। पीपल्स पार्टी की नशिस्तों की तादाद 104 हो गई। जमात इस्लामी की 87, PTI की 41 और मुस्लिम लीग नून की 8 नशिस्तें हैं। वजीर आला सिंध के मुशीर मुर्तजा वहाब कहते हैं, पीपल्स पार्टी के पास दरकार नंबर पूरे हैं। जमात इस्लामी को प्रोपेगेंडा के बावजूद शिकस्त हो रही है। पीपल्स पार्टी मेयर कराची मुंतखब करवाने की ज्यादा बेहतर पोजीशन में आ गई। दीगर जमातों के मुनहरिफ अरकान की हिमायत मिल जाए तो शहर कायद का मेयर जयाला बन सकता है। दूसरी तरफ PTI के साथ इत्तेहाद के बावजूद जमात इस्लामी के उम्मीदवार का मेयर मुंतखब होना मुश्किल नजर आ रहा है। MKM पाकिस्तान का कराची के हालात पर इजहार तशवीश। पीपल्स पार्टी क़यादत से नाला। मुत्तहिदा रहनुमा मोहम्मद हुसैन कहते हैं कि शहर में स्ट्रीट क्राइम तेजी से बढ़ रहा है। हमने 2007 में 25 अरब रुपए की लागत के K4 मंसूबे को वफाक की तरफ भेजा। 17 साल से पीपल्स पार्टी ने मंसूबे को फुटबॉल बनाया हुआ है। ये लोग कभी इस मंसूबे को मुकम्मल नहीं होने देंगे। मंसूबा मुकम्मल होने के बाद K4 का मंसूबा अप्रूव्ड करके वफाकी गवर्नमेंट को भेजा। 650 MGD का मंसूबा जो 3 मराइल पर मुश्तमिल था 2007 में एक कतरे का इजाफा नहीं किया। जिस मुल्क का वजीर खारजा और सिंध पर 16 सालों से बराजमान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन ये अल्फाज अदा कर रहा, वो क्या मैसेज दे रहा है कि जी मेरे घर में भी टैंकर से पानी आता है, तो आपको तो जो ये पानी दिया जा रहा है, जितना भी दिया जा रहा है, ये तो बड़ा एहसान अजीम है इनका। आपका चेहरा आवाम के सामने लाएंगे और आपकी जो करप्शन है, लूट मारे, ज़मीनों पे जो कराची में कब्जे और जो आपका सिस्टम चल रहा है अरबों रुपए सालाना की लूट मार का, वो भी हम आवाम के सामने रखेंगे। और यहाँ पर एक और अहम खबर आपको दें कि सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स कमीशन के समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 31 मई को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत में ऑडियो लीक्स कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स कमीशन केस की समाअत के लिए ये केस मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 31 मई को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत में ऑडियो लीक्स कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। खबर दे रहे हैं आपको कि सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स कमीशन के समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 31 मई को इस केस की समाअत करेगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत में ऑडियो लीक्स कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। बात करेंगे हमें ज्वाइन के नुमाइंदा पीर आसिया कौसर ने। आसिया, मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये अब सुप्रीम कोर्ट में एक दफा फिर से जो है वो जुडिशल कमीशन के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत जो है वो होगी। और मैं आपको ये भी बताऊं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो 31 मई को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत में ऑडियो लीक्स कमीशन का जो नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल कर दिया था और फर्दर आगे जो है वो जुडिशल कमीशन को काम करने से रोक दिया था। या मैं आपको ये भी बताऊं कि उसके बाद जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और उस पर ये तमाम मामला जो है वो डिस्कस भी हुआ। अटॉर्नी जनरल से भी जो है वो जस्टिस फातिमा ईसा जो कि जुडिशल कमीशन के हेड है उनकी जानिब से सवालात किए गए और उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में खुद को काम करने से जो है वो रोक दिया था। फर्दर जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशल कमीशन के खिलाफ दायर दरख्वास्तों का जो केस है, जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच सुन रहा है, जब तक इसका कुछ अपनी फैसला नहीं आ जाता तब तक जुडिशल कमीशन ने भी खुद को काम करने से रोक दिया। अब 31 मई को इस केस की दोबारा से फिर समाअत होगी और इसमें जो मुख्तलिफ मामलात हैं इस हवाले से, इस केस के हवाले से, इजलास के हवाले से, जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से आपसे गाहे तफसीलात लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। खबर यह भी है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में डेरा लगाने का फैसला किया है। लाहौर में कल उनकी आमद का इम्कान है। आसिफ अली जरदारी अहम रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे, जबकि ज़राए का यह कहना है कि पंजाब की अहम सियासी शख्सियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इस मौके पर ऐलान भी करेंगी। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जहाँ एक तरफ जहांगीर खान तरीन एक्टिव हैं, एक नई सियासी जमात से मुताल्लिक़ खबरें गर्दिश कर रही हैं, वहीं कुछ तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, मुनहरिफ रहनुमा हैं, वो अब पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से कुछ लोगों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन पंजाब सेंट्रिक पॉलिटिक्स की तरफ पीपल्स पार्टी की वापसी हो रही है और आसिफ अली जरदारी खुद लाहौर आ रहे हैं। क्या उनकी मसरूफियात रहेंगी, हैदर खरल से जान लेते हैं। हैदर, कहिएगा कितने लोग हैं जो बताया जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे, क्या मसरूफियात होंगी आसिफ अली जरदारी की?
جی بالکل، آصف علی زرداری جو ہیں وہ لاہور پہنچ رہے ہیں، کل ان کے پہنچنے کا امکان ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ بڑی اہم ملاقاتیں جو ہیں وہ لاہور میں کریں گے۔ پارٹی کے جو ان کے اہم رہنما ہیں سب سے پہلے ان سے ملاقاتیں کی جائے گی، اس کے بعد جو وسطی پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ ان سے ملاقات کریں گے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے جس میں پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر سائڈ پہ ہو رہے ہیں، اور کچھ بتایا جا رہا ہے کہ جو اہم رہنما ہیں وہ بھی آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ شمولیت کا اعلان کریں گے۔ بہت سے جو رہنما ہیں جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں، ان کی پہلے بھی ملاقات ہو چکی ہے، جو مزید ہیں وہ ملاقاتیں کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پیپلز پارٹی جوائن کریں گے۔ آصف علی زرداری جو ہے وہ ادھر پہنچیں گے اور وہ لاہور میں کچھ دن رکیں گے، اور جو پنجاب کے معاملات ہے یہ دیکھیں گے، اور پارٹی کو جو نئی ہدایات ہیں وہ جاری کریں گے کہ کس طرح سے اب موجودہ صورتحال میں پارٹی کو آگے لے کے جانا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔